شہر گلستان بنگلورو میں شیعہ سنی اتحاد کا خوبصورت خوشنما منظر۔ شیعہ مسلمانوں کی دعوت پر سنی علماء کرام، مشائخین، دانشور، صحافی مسجد عسکری پہنچے۔ یاد حسین کی مجلس میں شیعہ مسلمانوں کے ساتھ سنی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ 25 اگست 2022 بروز جمعرات بنگلورو کی معروف سماجی شخصیت میر اعجاز علی جوہری نے مسجد عسکری میں مجلس عزا کا اہتمام کیا۔ ملک کے معروف شیعہ عالم دین مولانا ڈاکٹر سید کلب رشید رضوی نے مجلس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر صدائے اتحاد کے سرپرست مجاہد علی بابا، انجمن امامیہ کے صدر سید ضامن رضا، روزنامہ پاسبان کے ایڈیٹر عبید اللہ شریف، سابق IAS افسر عزیز اللہ بیگ، کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق صدر مبین منور، معروف شاعر شفیق عابدی، خانقاہ وارثیہ کے سجادے سید عارف حسین شاہ وارثی، مولانا سید امیر الحق شاہ قادری، مولانا ظہیر الدین بہرا جماعت کے سرپرست عباس علی بہرا، بیسکام کے انجینئر آصف اللہ خان، اس طرح شیعہ اور سنی طبقے کی نمائندہ شخصیات نے اس یادگار مجلس میں حصہ لیا۔ ان سب نے مل کر اتحاد و اتفاق کے پیغام کو بلند کیا۔ یاد رہے کہ اس مجلس کے منتظم صدائے اتحاد تنظیم کے سیکریٹری میر اعجاز علی جوہری پچھلے 10 سالوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی یاد میں مجلس کا اہتمام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ پیام کربلا کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا ماحول برقرار رہے، کیونکہ اتحاد ہی طاقت ہے، اتحاد ہی ترقی ہے، اتحاد ہی کامیابی و کامرانی ہے۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ کیا اس کا مقصد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت ہی مشکور ہوں تمام حضرات کا، مشائخین کا، علماء کا، جو دیگر الگ الگ مسلکوں سے میں نے جیسے دعوت دیا دعوت قبول کر کے اس مجلس حسین میں آ گئے، اور ہماری جو ہے صدا اتحاد کا جو کام برابر 10-12 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ یہ 10 سال سے تو میں مجلس حسین جو ہے محرم کے مہینے میں مناتا آیا ہوں، اور میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ تمام مسلکوں سے لوگ، ان کے علماء حضرات اور اکابرین اس میں حصہ لیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں، اتحاد سے کام کریں۔ اس سلسلے میں جو ہے ہمارے دیگر ساتھی، جیسے ہمارے فاؤنڈر ہمارے مجاہد علی بابا نے ہمارا بہت ساتھ دیا، دیگر حضرات نے بہت ساتھ دیا، میں سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس مجلس میں آ کر آج کی جو مخصوص مجلس ہے امام زین العابدین کی شہادت کی مجلس ہے، جن کی شہادت ہوئی اس میں آئے ہیں، اور جو کربلا میں واقع کربلا میں جو شہادت کا پس منظر جو دیکھا ہے امام زین العابدین نے دیکھا ہے، جو بیمار تھے بعد میں اسیر ہوئے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جانا پڑا، تو اسی لیے امام زین العابدین کو سجاد بھی کہا جاتا ہے ان کے نام کو، کیونکہ ان کی پوری 40 سالہ زندگی انہوں نے عبادت خدا میں گزاری اور باپ کی شہادت پر رویا۔ تو میں شکر گزار ہوں تمام حاضرین کا جو یہاں پر جو اس مجلس میں جو حصہ لے کر مجلس کو کامیاب کیا۔ بہت بہت شکریہ۔
जारी रखना चाहिए और भी आगे बढ़ाना चाहिए? आप लोगों को भी मालूम है 12 साल से ही कोशिश चल रही है कि सब हम एक होकर के चले, तो उसी का ये नज़ारा है। यहाँ पर सुन्नी भी है, शिया भी है, पीर फकीर भी है, मशाइख भी है। तो हर साल जो है एजाज अली जौहरी साहब जो है सदाए इत्तेहाद की सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं शिया जमात से, तो ये इनकी हमेशा दावत रहती है, तो हम लोग इसमें आते हैं यही पैगाम देने के लिए। हम सब आपस में इत्तेहाद से हैं, ये आगे भी इत्तेहाद से रहना चाहते हैं। अब यही पैगाम जो है हर जगह दे रहे हैं। अब रही बात ये जो जिनके नाम से ये मनाते हैं, उसके नाम के सामने हर मुसलमान को सरखम करना पड़ता है। ये वो नाम है, इस नाम से बगावत या दूर रहने का कोई मतलब है नहीं। अब रही शिया सुन्नी और दूसरी की बात तो आप लोगों के सामने है कि सदाए इत्तेहाद ही है जो आज ये मकाम के ऊपर ये चेहरे देखने को मिल रहे हैं। तो होना चाहिए और आगे नहीं, इंशाअल्लाह अब ये जिम्मेदारी पूरी उलमा कराम की है। अपने अपने मिंबर के ऊपर से उलमा जो है उम्मत मोहम्मदी में हक गोई की बात पेश करे, ना कि ये फला वो है, फला ये शिर्क ये बिद्दत, ये फैसला अल्लाह तबारक व तआला कर लेगा। तो उलमा को भी सोचना चाहिए, अल्लाह ताला ने खबरदार कर चुका है, अगर आपस में ये नहीं रहोगे, इत्तेहाद से नहीं रहोगे, तो समझो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम दुआ करो मैं मदद कर दूंगा, अल्लाह ने इशारा दे दिया है अगर आपस में इत्तेहाद से नहीं रहोगे तो हवा उखड़ जाएगी और तुम्हारा कोई खैर ख्वाह बाकी नहीं रहेगा। तो मैं आपके इस चैनल से यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह की बात को समझो और उसकी बात के ऊपर अमल करो, ताकि अगर मुसलमान हो तो, ना कि ये कि आज हमें ये देखने को मिला है देवबंद के अंदर 3-3 जमातें हैं, चाचा साहब की एक है, भतीजे साहब की एक है और बीच में देवबंद वक्फ एक है। इसी तरह बरेली में भी हमने देख चुके हैं, वहाँ भी 3-3 हैं। और नदवा का भी हमने हाल देखा है और कचोचा का भी हमने देखा है। ना पीरी फकीरी में एक है, ना ये मदरसे वाले एक है। जब यही लोग आपस में इत्तेहाद से नहीं है तो ये कैसे उम्मत को रहने देंगे, ये मेरा सवाल है। तो सबसे पहले ये लोग आपस में इत्तेहाद से आ जाएं तो मैं समझता हूँ कौम इत्तेहाद में आ जाएगी। आज भी 12 साल से हम देख रहे हैं, दिलों में आज भी उनके बड़ों ने जो बोया है उसका असर बाकी है। जब तक वो असर बाकी नहीं हो, बाहर नहीं निकलता, तो समझो इत्तेहाद के लिए मुश्किल है। वरना जो जलालत आज उठा रहे, इससे खतरनाक जलालत आइंदा उठाना पड़ेगा। बिरादरान मिल्लत, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ मस्जिद अस्करी में जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो तन्हा जिस तरह इस जुल्मों से आपने मुकाबला किया, आज इस्लाम उसी दौर पे पहुंचा है कि जालिमों से मुकाबला करना है। वो मुकाबला जब तक इत्तेहाद और सदा एक ही नहीं होगी, जैसे सदाए इत्तेहाद आज हम जिस सदाए इत्तेहाद के लिए हम काम कर रहे हैं, आप आज यहाँ नज़ारा जो देख रहे हैं माशाअल्लाह सभी मसलक के, यहाँ ना कोई शिया है, ना सुन्नी है, ना कोई दूसरी जमात है, यहाँ पर सिर्फ मोमिन है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर कहीं भी हो मोमिन की आप हिफाजत करें, मोमिन को आप हिदायत दें और मोमिन को आज के दौर के सही रास्ते उनको दिखाए। अगर मोमिन सही रास्ते पे चलना और अपने फर्ज को समझता है और अपनी वफा को समझता है तो उसके लिए कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, हर चीज़ अल्लाह ताला आसान करेगा। मैं इस पैगाम के साथ कहता हूँ, माहौल कायम हो सकता है इत्तेहाद का पहले तो अपने खुद के अंदर वो जज्बा पैदा कीजिए कि आप इत्तेहाद पे हैं या नहीं। आप अपने अमल से, आप अपने कर्म से, आप अपने अमाल से, आप अपनी नीयत से आप इत्तेहाद चाहते हैं या नहीं, ये होना जरूरी है। दिल में एक, बाहर एक और दिखाने में एक अगर आप करोगे तो ये इत्तेहाद के कमजोरी के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। और जब तक इत्तेहाद मुकाम कायम होगा, इस्लाम की मजबूती और बढ़ेगी और मोमिन की हिफाजत ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी।
हो सकती है, कैसे ये काम हो सकता है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम उम्मत मोहम्मदी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। देखिए, आपका जो सवाल है, इस सवाल पे अगर आप जवाब चाह रहे हैं तो जो है इसमें सब्र के साथ काम करना पड़ेगा। जब तक कि आप सब्र से काम नहीं करेंगे कोई चीज़ को आप हासिल नहीं कर सकते। अभी देखिए, हैदराबाद में जो गुस्ताख रसूल राजा सिंह जो फितना उठाया है, जज्बाती में आके हमारे मुसलमान अवाम जो पिस रहे हैं, आज जो अरेस्ट हो रहे हैं हैदराबाद में, अगर जज्बाती होकर अगर काम करेंगे तो हमारी कौम पीछे जाएगी। सब्र के साथ और इत्मीनान के साथ काम करें ताकि अल्लाह और उसका रसूल का साया हम सब पर बना रहे इंशाअल्लाह। इत्तेहाद बैन मुस्लिम के क्या फायदा होगा? देखिए, मैं सदा इत्तेहाद का नायब सदर हूँ और सुन्नी जमीयत उलमा का जो है नायब सदर हूँ। बड़ी खुशी की बात हुई और जो है हमारे अस्करी साहब जो है एजाज अली साहब एजाज अली जौहरी साहब ने अपने दावत दी तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक बोल के हाजिर हुआ। और माशाल्लाह ये मेरे ज़िंदगी का पहला जलसा है जो शिया उनके मसाजिद में पहली बार आया हूँ। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है और मेरी दुआ ये है कि हमारे बुज़ुर्गान दीन की भी दुआ ये है कि हम उम्मत मोहम्मदी इत्तेहाद और इत्तेफाक में चलने की तौफीक अता फरमाए हमसे। इत्तेहाद का नाम जिंदगी, इख्तलाफ का नाम मौत है। तो इत्तेहाद का नाम जिंदगी, इख्तलाफ का नाम मौत है। तो सदा इत्तेहाद की तरफ से पहले से यही किनारा है और हमेशा यही रहेगा, अपने मसलक को छोड़ो मत, दूसरे मसलक को छेड़ो मत। तो यही नारा है। अब मिल्ली व समाजी मामले में हम लोगों को एक होना चाहिए, कलमे की बुनियाद पर हमें एक होना चाहिए। आज ये जो एक मुजस्समा जो हमें देखने को मिल रहा है वो बड़ा ही अजीम पैमाने पर है। जिस तरीके से एक बाग में एक ही फूल से उस बाग की खूबसूरती उतनी नहीं होती जितनी अलग अलग फूल होती है, तो इसी तरीके से यहाँ सब जमा हैं और यहाँ आज का जो उन्वान हुआ है और इसमें तमाम मसालिक के लोग जमा होकर के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर हमारे मुल्क में अमन कायम करें, इख्तलाफात को दूर करें। फिर मैं कहता हूँ, अपने मसलक को छोड़ो मत, दूसरे मसलक को छेड़ो मत, इसी पर कायम और दायम रहें। यह हमारी तरफ से एक अदना सा पैगाम। ये आजकल इतने फिरके हो गए हमारी कौम में कि यकजहती का मामला बन रहा नहीं है। अब बनाने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। अब सदा इत्तेहाद का वो एक इदारा है जो ये सब ऑर्गेनाइज करके कोशिश कर रहे हैं कौम में अफरा तफरी हट जाए, यकजहती बन जाए। ये ज़रूरी है। आज के हालात के मद्देनज़र ये जो यह कोशिश हो रही है यकजहती की, बहुत मुमकिन है, अच्छा है। हर आदमी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, अपने अफरा तफरी ख़त्म करना है। आखिरकार हम एक ही हुजूर की उम्मत है, तो वो लास्ट ये रखकर हमारी फिरक़ेवारी ख़त्म करे तो अच्छा है बोल के मेरी पर्सनल राय। आपका नाम? आसिफुल्लाह खान। जी। जब अमल की बात आती है तो हट जाते हैं और जैसा कि बाबा जी ने भी बताया कि नहीं, मसला हमारा ये है कि हम इत्तेहाद की बातें करते हैं लेकिन जमातों में मुसलसल तोड़फोड़ होती रहती है और अलग अलग छोटी छोटी जमातें बनती रहती हैं। अब यही है कि अब हम कहीं जाते हैं तो आपको वहाँ बरेलवी मिलेगा, देवबंदी मिलेगा, सुन्नी मिलेगा, सब मिलेंगे, लेकिन मुसलमान कहीं नहीं मिलेगा। मुसलमान की शनाख्त क्या है? मुसलमान की शनाख्त कलमा है, कुरान है, हदीस है, हुजूर अकरम की सीरत है, उन पर अमल करने की तौफीक अगर अल्लाह हम सबको दे तो ये सारे तफरीक़ात, ये सारे तकसीम, ये सब ख़त्म हो सकती है। लेकिन अफसोस के हम अपने अनाज के ग़ुलाम हैं, हम अपने ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं, इक़्तिदार के पीछे दौड़ते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर तफरीक़ पैदा कर रही है। हमको सबक लेना चाहिए उन कौमों से जो छोटी कौमें हैं लेकिन इत्तेहाद की बदौलत वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। और हम हालांकि पूरी दुनिया में
दूसरी सबसे बड़ी कौम है ईसाइयों के बाद, लेकिन हमारे अंदर इतने तफरक़े, इतने तकसीम और इस कदर मसाइल पैदा हो रहे हैं कि हम मामूली चीज़ों पर भी एक साथ बैठकर एक तहजीब के साथ, मुलायमत के साथ आपस में गुफ्तगू भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि कोई किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता। ये हमें तबाही की तरफ ले जाएगा, तरक्की की तरफ नहीं। यही मेरा पैगाम है। हाँ, 1832 के बाद जो तब सारी चीजें पैदा हुई, 1832 से पहले का मुसलमान हमको चाहिए। आज दुनिया को इसकी जरूरत है। तब दो ही फिक़े थे, या सुन्नी थे या शिया थे। शिया और सुन्नी के दरमियान भी इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है, और दोनों तरफ के अकाबरीन ने इस पर जोर दिया है, चाहे वह कल्बे सादिक हो या हमारे मोहतरम देवबंद के बड़े बड़े अकाबिर हों। उन्होंने जोर दिया है कि हमको मिल बैठने की, दोस्ती की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और एक दूसरे का एहतराम करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे एजाज अलीपुरी जौहरी साहब ने आज एक मजलिस तलब की थी, इसमें तमाम मकतब फ़िक्र के हजरात मौजूद थे। यहाँ पे ये एक इत्तेहाद और इत्तफाक की मिसाल है। शिया, सुन्नी और तमाम तबके के लोग यहाँ जमा होते हैं। पहले से ही बेंगलोर का माहौल ऐसा है कि शिया सुन्नी में जो है प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद इत्तफाक हमेशा से रहा है, इंशाल्लाह रहेगा। और हमारे एजाज साहब जो है ऐसी महफिलें हमेशा हर साल मुनक़िद करते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हम सबको जो है फिर एक बार जमा होने का मौका दिया। ये एक अपने आप में एक मिसाल है, इत्तेहाद और इत्तफाक की एक मिसाल है। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक तकरीब यहाँ पर हमारे अजीज दोस्त एजाज अली साहब जौहरी ने याद इमाम हुसैन और अहले बैत के मोहब्बत में सजाई, और हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसी महफिल में आए और तबर्रुक से अल्लाह ने हमको सरफराज फरमाया। हम बचपन से लेकर आज तक जितने भी हैं, ये और बात है कि कुछ लोगों में तफरका होगा, मगर जहाँ तक मैं कर्नाटक की बात करता हूँ, भले बड़े नरसीपुर हो या अलीपुर हो या बेंगलुरु हो, सुन्नी शिया का हमेशा यह मरकज रहा है और इत्तेहाद का पैगाम वहाँ से आगे आया है, और हमेशा इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तक के मोहब्बत भाईचारगी रहेगी। हम दुआ गो हैं कि हमारे अली जौहरी साहब जो है, एजाज अली जौहरी साहब, ऐसे बहुत से अहबाब हैं जो रोज़ाना महफिलें सजाते हैं, रोज़ाना लोगों को जमाते हैं, और उसमें बिलखुसूस हमारे एजाज अली साहब जो हैं हर मकतब फ़िक्र के लोगों को बुलाते हैं। ये बहुत ही बड़ी उम्दा बात है। इंशाअल्लाह हम तमाम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम में ये भाईचारगी और मोहब्बतें हमेशा कायम रखे और एक दूसरे के काम आने की तौफीक अता फरमाए। जो है आगे बढ़ाने की जरूरत है, इन कोशिशों को मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्या आप महसूस करते हैं? देखिए, हकीकत तो ये है कि बाबे हुसैन सिर्फ बाबे हुसैन नहीं बल्कि बाबे इंसानियत है, बाबे मरकज़ इत्तेहाद है। इसी का नज़ारा आप हर साल जो है हम लोग मुहर्रम में देखते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि सिर्फ मुहर्रम के अयाम में ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों में इत्तेहाद होना चाहिए, हमारे रोज़ाना रहन सहन में इत्तेहाद होना चाहिए। और ये इख्तिलाफात जो है ज़वाल की निशानी है, सिर्फ इत्तेहाद ही जो है हमें आफाकी मंजिलों तक पहुंचा सकता है। मेरा मानना ये है कि इत्तेहाद के बगैर, जिस्म में अगर इत्तेहाद नहीं है तो इंसान जी ही नहीं सकता। अगर कोई अज़ू बीमारी का शिकार हो जाता है तो इंसान परेशान हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें यह सोचना चाहिए कि 14 सदियों से कई मसाइल हमारे दरमियान हल नहीं हो सके, इसलिए आज हल होने की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पर हमें यह फैसला कर लेना चाहिए कि इज्तिमाई मसाइल में हम एक हो जाए, अपने अपने मसलकों पर रहें और
पीरो मुर्शिद बरकतुल्लाह हुसैनी जिनकी मज़ार शरीफ पंजाब में है, उनका एक कौल पढ़कर मुझे बड़ा अजीब व गरीब दर्स मिला। उनसे किसी मुरीद ने पूछा कि आप किस मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किस मसलक के हैं? तो बरकतुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि करबला के बाद मुसलमानों में दो ही मसलक बाकी रह गए हैं, एक हुसैनी मसलक है, एक यजीदी मसलक है। तो इससे ये दर्स मिलता है कि इमाम हुसैन के दर से जो जुड़ जाता है वो मोहब्बतों को आम करता है, इत्तेहाद को आम करता है और पैगाम इंसानियत को जो है दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इस प्रोग्राम में मस्जिद अस्करी में हमेशा से कई सालों से हमारे एजाज भाई जौहरी ये प्रोग्राम करते हैं और तौफीक दिया मौला ने कि बीमार करबला मौला सैयद सज्जाद के नाम से ये प्रोग्राम उनकी शहादत के लिए मजलिस का बर्पा करना, वो भी मस्जिद इमाम अस्करी में और बेंगलोर कर्नाटका में। और इस वक्त जो चेहरे आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो यहाँ के मोतबर तरीन चेहरे हैं। बरादरान मुस्लिम में हमारे कई समाज आते हैं, उन सारे समाजों की नुमाइंदगी यहाँ हो रही है और मैं अपनी कौम की तरफ से पूरी शिया इस्ना आशिर जमात की तरफ से, इस शहर के तमाम शिया बरादरान की तरफ से, इन सारे उलमाए बरादरान अहले सुन्नत और हमारे बोरी भाई और हमारे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं अलग अलग फ़िक़्ह और अलग अलग मकतब फ़िक्र के, उन सब का इस्तक़बाल मौला इमाम हुसैन की बारगाह और उनकी मजलिस में करता हूँ। और हमें ये हवा और फैलानी चाहिए और बढ़ानी चाहिए, ये और लोगों तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि हुसैनियत ही वो स्टेशन है जिस पर तमाम मिल्लत एक साथ जमा हो सकती है। और मुझे लगता है हुसैनियत क्योंकि कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो मरने के बाद जन्नत में ना जाना चाहे, और सैयदा शबाब अहलिल जन्नत सिर्फ हुसैन है, ये रिवायतों से साबित है। तो जाहिर सी बात है सरदार के पास मौत के बाद पहुंचे इससे अच्छा है मौत के पहले पहुंचे, ताकि ये जमानत दे सके कि मौला हम जिंदगी में भी तेरे साथ हैं, जिंदगी के बाद भी तेरे साथ हैं। तो आज के जो हालात हैं मौलाना, जो तफरीका है, नफरत का माहौल है, समाज को बांट कर इक़्तिदार हासिल करने की कहीं कोशिशें होती हैं, समाज में फूट डालकर कोई ताकतें जो हैं पावर हासिल करना चाहती हैं, तो इन हालात का मुकाबला कैसे किया जाए? इल्म हासिल करें, जानकारी हासिल करें, अक्ल बढ़ाएं। जहर जब से इंसान है तब से पाया जाता है, आग जब से इंसान है तब से पाई जाती है, तूफान जब से इंसान है तब से पाया जाता है, मुसीबत और बीमारी जब से इंसान है तब से पाया जाता है। मगर आप अपने आप को बीमारी से बचाते हैं, जमाना कोई भी हो, घर को आग से बचाते हैं, जमाना कोई भी हो, पेट को जहर से बचाते हैं, जमाना कोई भी हो। दुश्मन आपसे करवाना चाहे ये बड़ी बात नहीं है, आप दुश्मन के झांसे में आके कर रहे हैं ये बड़ी बात है। इस चीज को खत्म करने के लिए इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करेंगे अक्ल मजबूत होगी, अक्ल मजबूत होगी, अकेले भी रहेंगे तो मुख्तार रहेंगे, किसी की कोई डरने या घबराने की जरूरत नहीं है और ना इसका कोई नोहा पढ़ने की जरूरत है, ना मातम करने की जरूरत है। मुसलमान हिंदुस्तान में मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा अगर इत्तेहाद से रहा, और अगर इत्तेहाद से नहीं रहा, आपस में बरेलवी देवबंदी से लड़ रहे हैं, देवबंदी शिया से लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी से लड़ रहे हैं, सुन्नी फलाने से लड़ रहे हैं, फलाना फलाने से लड़ रहे हैं, तो लड़ो फिर। जो लड़ने वाला होता है वो बहक जाता है, जो इत्तेहाद वाला होता है वो दरिया के बहाव को अपने काबू में रखता है। हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है उसका नाम है इत्तेहाद। हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। अस्सलामु अलैका या मौलातनी बीबी सकीना बिन्त अल हुसैन। अस्सलामु अलैका।